transformation. The Constitution itself is a social transformative document. Likewise, when we are dealing with issues of gender, say like the appointment of women on a permanent commission in the armed forces, there were a lot of arguments before, which were urged before us that, why women cannot be granted permanent commission in the armed forces. That, well, will women be able to, be on warships in the middle of the ocean? Or would women be able to guard our borders in the bunkers on the borders of the nation? And it depends on what your vision of the good society is for the future. And we said that, look, there is no reason why the same work which men do cannot be done by women. And the results are now for all of us to see. You have women who are fighter pilots, they're commanding squadrons, women are at the forefront on our naval warships, women are in the armed forces, working shoulder to shoulder with men. So it's a question of how you stretch the Constitution. The Constitution ultimately is an abstract document. But what is most important about the Constitution, I think, and which I'd like to emphasize in the context of Samvidhan at 75, is that there is no one dominant theme which you can find in the Constitution. The Constituent Assembly comprised of people drawn from different walks of life. बाकी जो संविधानें थी, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है या कई बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, they were enacted, they were adopted in a very different context. Our constitution was not a constitution which was adopted by warring groups. No. We had the history of the princely states, British India, everybody came together. Sardar Vallabhbhai Patel brought everybody together in ultimately creating one unified fabric of a political national entity. Now, the beauty of our constitution is that it reflects the diversity of India. It reflects the linguistic diversity of India, the regional diversity of India, the cultural diversity of India, the religious diversity. And if you look at the Constitution in that sense, the great strength and stability of our Constitution is that it does not follow any one particular ideology or any one particular dominant theme. The one dominant theme, if there is of human dignity. But beyond saying that and adopting the fundamental values in the preamble, like liberty, equality, fraternity, the Constitution allows for diversity in India to flourish. And that is why the Constitution has been so stable for the last 75 years. Because the stability of our nation lies in the diversity of the nation. And the Constitution has brought together this diversity in creating one political document for governance in the country. जैसे चंद्रचूड़, एक और सवाल जो मेरे मन में काफ़ी देर से है, अब क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ आपके सामने, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, आशीष तो रोज़ मिलते रहते हैं, मैं आपकी इजाज़त से पूछना चाह रहा हूँ, एक कंट्रोवर्सी होती है हमेशा कि कौन सा केस किस कोर्ट में जाएगा, चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं, आपके पास वो जिम्मेदारी है, उसको लेकर वो कैसे फैसला किया जाता है कि बेंच कोर्ट नंबर 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, क्या कुछ आप सोचते हैं, कैसे वो सिलेक्शन होता है? देखिए, पिछले 2 साल में मैं जब चीफ जस्टिस बना 2022 नवंबर में, 2 साल में करीब 1,10,000 केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। अब 1,10,000 केसेस चीफ जस्टिस तो असाइन नहीं कर सकता, इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। तो ये जो गलत फहमी है कि चीफ जस्टिस असाइंस ऑल द केसेस विच आर फाइल्ड इन द कोर्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। चीफ जस्टिस क्या करते हैं? चीफ जस्टिस को कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। रोस्टर क्या है? रोस्टर इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क। द चीफ जस्टिस पब्लिशेस द रोस्टर ऑफ वर्क, नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में सदियों से ये रिवाज है। द चीफ जस्टिस will publicize the roster of work. कोर्ट नंबर 1 के सामने ये कैटेगरी ऑफ केसेस जाएंगे, कोर्ट नंबर 2 के पास ये कैटेगरीज ऑफ केसेस जाएंगे। अब ये रोस्टर कैसे तैयार किया जाता है? नॉर्मली चीफ जस्टिस ये देखते हैं कि इस कैटेगरी का इनफ्लो क्या है। अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस का सबसे ज़्यादा इनफ्लो है, तो क्रिमिनल केसेस करीब हर एक बेंच क्रिमिनल केस लेती है। कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिसको आप स्पेशलाइज्ड बेंचेस की ज़रूरत होती है, जैसे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक जज इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकते हैं।
कमर्शियल केसेस, स्टैट्यूटरी अपील्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन है। तो चीफ जस्टिस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कोर्ट में इस ब्रांच के लिए खास तौर पर स्पेशलाइजेशन किन के पास हैं। टैक्स केसेस हैं तो हाई कोर्ट में ज़्यादातर कौन से जजेस ने टैक्स केसेस किए हैं, और इस आधार पे चीफ जस्टिस एक रोस्टर पब्लिश करते हैं। वो रोस्टर इज ऑलवेज मेड पब्लिक ऑन द वेबसाइट। आज भी आप देख लें तो द रोस्टर इज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विद इन दैट रोस्टर केसेस आर एलोकेटेड बाय द कंप्यूटर। अब मान लीजिए टैक्स के लिए 3 बेंचेस हैं, या सर्विस के लिए बहुत इनफ्लो होता है केसेस का, एम्प्लॉयमेंट के जो मामले हैं, सरकार, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयमेंट के बारे में या राज्य सरकारों के साथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो उसके लिए मान लीजिए 3 बेंचेस हैं। तो वो 3 बेंचेस में अलॉटमेंट ऑफ केसेस फॉलोज द कंप्यूटर। द कंप्यूटर विल डू अ रैंडम एलोकेशन। अब कई केसेस जजेस रिक्यूज कर जाते हैं। क्यों रिक्यूज कर जाते हैं? खास तौर पर मान लीजिए किसी जज में उसी केस में निर्णय दिया है हाई कोर्ट में, या उनके कोई फैमिली के रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपेयर हुए हैं हाई कोर्ट में, या किसी पार्टी को जानते हैं, तो वो रिक्यूज कर जाते हैं। उसके बाद वो चीफ जस्टिस के पास आ जाता है केस, रजिस्ट्री उस पर फाइल नोट बनवाती है कि ये किसको असाइन करना है। सो इट्स रियली इनअप्रोप्रिएट टू से दैट द असाइनमेंट ऑफ केसेस is at the random discretion of the chief justice। पर एक कोई व्यक्ति तो होना ही चाहिए। अब सवाल यह है, आप उस पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। और आप मान लीजिए चीफ जस्टिस को ये अधिकार नहीं देना चाहते, तो किसको अधिकार दे देंगे? क्या 34 के 34 जजेस असाइन करेंगे केसेस? मैं जब नेपाल गया था तो मुझे बहुत अच्छी एक प्रणाली उन्होंने बताई। हर रोज़ सुबह सारे जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सुबह बैठते हैं, आज जो सारी केसेस लिस्ट करनी है वो एक लॉट्स में, उसमें लॉट्स ड्रॉ होते हैं, पर्चियाँ। हाँ, पर्चियाँ। और फिर वो सुबह वो कौन से बेंच के पास कौन सी केसेस जाएंगे, इसका निर्णय होता है। अब आपके पास 50 केसेस हो दिन के तो आप कर सकते हैं। आपके पास, हमारे यहाँ 16 बेंचेस चलते हैं सोमवार और शुक्रवार को। हर एक बेंच के सामने मान लीजिए 70 केसेस हैं, तो 16 into 70, you have over 1,000, over 11, that's the kind of inflow which you have. So obviously you can't do this. What is the better system which we can follow? Yeah. We have a combination of technology where we use allocation through the computer, and we combine it where in certain cases the Chief Justice has to exercise discretion. अब आप चीफ जस्टिस को ये अधिकार नहीं देंगे तो किसको अधिकार देंगे? आप सरकार को तो अधिकार नहीं दे सकते हैं एलोकेशन के लिए, बिकॉज फंडामेंटली द होल इश्यूज ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि व्हेन यू गिव एनी अथॉरिटी टू अ ह्यूमन बीइंग, दैट सिस्टम कैन नेवर बी परफेक्ट, बट merely because the system is imperfect, we shouldn't cast aspersions on the person who is entrusted with that responsibility. सर, मैं आपके फेयरवेल स्पीच में स्कोरा में सुन रहा था, आप बहुत अच्छे से एलोबरेट कर रहे थे, और आप बता रहे थे कि संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस बनेंगे, और लोग बोल रहे हैं कि मुंबई ने दिल्ली को बैटन दे दी है। और रणजी ट्रॉफी का भी आपने जिक्र किया, आईपीएल का भी जिक्र किया कि हम रणजी ट्रॉफी हैं पुराने टाइम के, जिसमें एक तरफ मुंबई होता था और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया होता था। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हैं। ये खेल की बात जो है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, और कौन सा खेल है जो अभी भी आप खेलते होंगे, क्योंकि आप फिट रहते हैं इतने? देखिए, पसंद का खेल तो क्रिकेट है, पर क्रिकेट खेलने के लिए समय नहीं मिलता था, और शायद थोड़ी सी उम्र भी ज़्यादा हो गई है अब क्रिकेट खेलने के लिए। पर मैं क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। आज भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच रहता है उसका मैं सीधा प्रसारण तो नहीं देख पाता हूँ, पर रात को 5-7 मिनट तो मैं हाईलाइट जो हैं वो हर रोज़ देखता था कि कैसे खेले हैं विराट कोहली, कैसे खेले हैं आज, अश्विन ने बॉलिंग कैसे की है, या बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है कि नहीं, पर्थ में अच्छी गेंदबाजी की थी कल। तो इसमें तो काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ मैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर? सॉरी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, किसको? प्रेजेंट क्रिकेटिंग लॉट में मेरा फेवरेट 2 हैं, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली।
मैं पर इसके पहले वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनमें मैं राहुल द्रविड़ को बहुत मानता हूँ. आप उनके ऑलवेज जैसे- स्टेबल, ऑलवेज सॉलिड. आप उनके जैसे दिखते भी हैं. और टेस्ट मैच, आईपीएल और मतलब टेस्ट मैच, T20 और बीच में वनडे, उसी तरह के खेल, उसी तरह से जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होती है. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टेस्ट मैच 5 दिन चलेगा, अयोध्या 40 दिन चला, और या 2 दिन चलेगा, फुल डे हियरिंग. बहुत पेशेंस की जरूरत होती है. T20 भी होता है, एक दिन में पूरा हियरिंग करके फैसला आ जाए, जैसा आपने बुलडोजर यूपी में दिया, और आपने बताया कि रूल ऑफ लॉ में बुलडोजर जस्टिस नाम की कोई जगह नहीं है. इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी केस खत्म हो जाते हैं T20 की तरह. सर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इन तीनों में? क्योंकि 38 फैसले, जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये घोषणा की कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मामले आपने सुने और डिसाइड किए, जो रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कोई तोड़ेगा. खेल से सुनवाई को देखते हुए आम लोगों को किस तरीके से हम भरोसा दिलाएंगे कि जिस तरह टीम इंडिया पे उन पर भरोसा रहता है, इसी तरह देश की न्यायपालिका पे हमेशा आप भरोसा रखिए. देखिए, पहली तो बात यह है कि जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है. अब सचिन तेंदुलकर ने इतने सेंचुरीज किए हैं, वो शायद वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा एक दिन. तो किसी भी व्यक्ति को अपने में इतना विश्वास नहीं होना चाहिए कि जो मैंने कार्य किया उससे और कोई बेहतर नहीं कर सकता है. आगे आने वाली पीढ़ी इससे भी बेहतर काम करेगी, आज की पीढ़ी अच्छी उससे बेहतर काम करेगी. We must accept that others will do things better than what you do. That's what your faith in humanity is all about. You're right. I mean, as a judge of the Supreme Court, you have to balance two things. एक तो जो केसेस आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखिए 2020 में करीब 29,000 मामले फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में. 2024 में जो एक्सट्रैपोलेटेड फिगर्स हैं, नवंबर तक हमारे पास फिगर्स हैं, हम अपेक्षित करते हैं कि करीब 60,000 मामले फाइल होंगे. तो 29,000 से 4 साल में दुगना हो गया है. अब एक तो जज के लिए सबसे बहुत महत्व यह होता है कि आपको जो नए नए केसेस आ रहे हैं उनका डिस्पोजल करना है. पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. और अपेक्षा क्या है? यही अपेक्षा एक नहीं है कि आप छोटे छोटे मामलों पर ध्यान रखेंगे, उन पर भी ज़रूर ध्यान रखना है आपको. पर जो बड़ी समस्याएं किसी भी पीढ़ी की, उनका भी तो आपको उन पर आपको विचार विमर्श करना है. सो दिस इज़ अ बैलेंस विच यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ड्रॉ ऑफ हियरिंग दीज सेमिनल इश्यूज ऑफ आवर टाइम, which the smaller issues and cases which come up before us. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने कई मामले फेडरलिज्म के मामले थे, मिनरल राइट्स जैसे, कि मिनरल राइट्स पे कौन टैक्स कर सकता है, क्या केंद्र टैक्स कर सकता है या राज्य टैक्स कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मसला था. या इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को कौन रेगुलेट कर सकता है, क्या केंद्र रेगुलेट कर सकता है या राज्य रेगुलेट कर सकते हैं. तो ऐसे कई मामले हैं. जीएसटी में, जीएसटी इज़ अ साइन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. हाउ डू वी एंश्योर दैट दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फ्लरिशेस. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द टाइम विच हैव कम अप बिफोर अस. कई बार सोशल मीडिया पे इसमें विचार विमर्श नहीं होता है, क्योंकि दीज आर नॉट political hot potatoes in that sense for social media. But these are very critical issues for us as a court. तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है हम लोगों को, T20 जो आप कहते हैं और 5-day टेस्ट मैच. जस्टिस चंद्रचूड़, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, और वो ये कि आपकी क्या राय है, इंडिविजुअली स्पीकिंग, क्या जजेस को राजनीति में आना चाहिए? आपने कोर्ट छोड़ा, चुनाव लड़ लिया, आपने कोर्ट छोड़ा, आप राज्यसभा में आ गए, क्या कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओन ओपिनियन? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एनी आंसर विच आई गिव शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज कास्टिंग एन aspersion on judges who have gone before me. जैसे there were some very distinguished judges, Justice K. Subbarao, who is one of the greatest judges of our time, who resigned from the Supreme Court to contest the presidential election. Yeah. Now, that was a call which Justice Subbarao took at that time, and I wouldn't want to be construed as expressing any form of disrespect to some of the greats of the past, merely based on a particular decision which they took.
Uh, what I do believe, however, is this, that in everything, सेवानिवृत्ति के बाद, after retirement, समाज एक जज को, न्यायाधीश को हमेशा न्यायाधीश के रूप में ही देखती है. They never look at you, now you will call me former Chief Justice of India, or Justice Sikri, former judge of the Supreme Court of India. But society continues to look at you as a judge even when you lay down office. Therefore, things which are all right for other citizens to do, society expects would not be all right for judges to do, even when they cease to be in office. Therefore, primarily, it is for every judge to take a call on whether a decision which I take after I retire will have a bearing on how people assess the work which I did as a judge. Right after you, for instance, cease to be a judge, if you join politics, that may give rise to a certain perception on the members of society on what was the extent to which the judicial work which was carried out by the judge was influenced by the politics which that judge adopted thereafter. Now, obviously, judges are also private citizens, and they are entitled to the same rights in a democratic society that a private citizen is entitled to. There is neither a bar in the Constitution nor a bar in the law to exercising those rights which a private citizen has. But there is an expectation of society from judges of a higher standard of behavior, which I believe it's for every judge to ask themselves. Second, perhaps there should be some element of consensus within the judiciary on what could be acceptable and what would not be acceptable. That consensus has still not evolved. And who better to evolve at that consensus than the judiciary itself, by having some form of discussion, dialogue between sitting judges, between former judges, on what is perhaps the most appropriate thing for retired judges to do. Just was last one clarification. तो मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले हैं. I think I've given you my answer. The most important thing I think is that, and I believe that you will find me doing that, I don't think I should be doing anything in my life after 65 which would cast any element of doubt, not only on the work which I did, but on the integrity of my system. Because I'm conscious of the fact that I've reached here because of this institution. No individual, आपने अच्छी बातें कही मेरे बारे में, but no individual rises above the institution. We are really tributaries which emanate from the source. So in whatever a former judge does and your behavior, whether in terms of what you do after retirement or your personal lifestyles, this must accord with the sense of faith which society has in your institution. Not just in your own work as a judge, but in how society perceives the institution of which you are a part. Thank you, Chief Justice. दिल खोल के आपने बात की, बहुत इत्मीनान से बात की, साफगोई से बात की, वक्त की इजाजत. सर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप हमेशा वायरल हो जाते हैं. कब एक मैसेज आया, एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा है कि वो कनॉट प्लेस में हैं, कॉलेजियम मीटिंग हो गई और शॉपिंग करने आए थे, 500 रुपये ऑटो के लिए चाहिए. या डिजिटल अरेस्ट एक बिजनेसमैन ने कर लिया आपकी कोर्ट दिखा के. आप ये सब देखते होंगे, कैसा लगता होगा आप? सोशल मीडिया को या कनॉट प्लेस को? देखिए, कनॉट प्लेस को तो हम जब कॉलेज में थे, हम उसमें उस समय कहते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र था, तो हम उस समय कहते थे सीपी में टीपी. तो सीपी में टीपी क्या है भाई? तो सीपी में कनॉट प्लेस में टाइम पास. तो एक समय ऐसा भी था जो हम सीपी में टीपी करते थे. जी जी. मैं 210, 220, 240 डीटीसी के बस से सेंट्रल सेक्रेटरीट से मैं जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी, या कभी मन करता था तो 101 ले जाते थे, वो रेड फोर्ट से चांदनी चौक से होते हुए जाती थी. सोशल मीडिया को मैं खास तौर पर जब मैं जज था, हर चीज़ तो मैं देखता हूँ, इसलिए क्योंकि क्या है, देखिए, you're human beings and you're liable to be deflected in the work which you do by constantly looking at the social media. मेरे साथ मेरे जो जुडिशियल लॉ क्लर्क्स हैं वो अक्सर सोशल मीडिया को देखते थे और मुझे कहते थे आप प्लीज़ आप मत पढ़िए इसको,
हम पढ़ते हैं, हमें काफ़ी निराशा होती है। कई बार बहुत गलत चीज़ें जजेस के बारे में लिखा जाता है। जैसी मैंने कहा मेरे फेयरवेल स्पीच में कि सोमवार 11 नवंबर से जो मेरे बारे में ट्रोल्स कर रहे थे वो शायद अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि आप किसके बारे में ट्रोल्स करेंगे। पर मैं ख़ास तौर पे मैं सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही मैं सोशल मीडिया पर था ना ही मैं सोशल मीडिया को फॉलो करता हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पर अच्छी अच्छी चीज़ें देखता हूँ, थोड़ी गज़लें देखता हूँ या क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ, पाश्चात्य म्यूज़िक सुनता हूँ, अच्छे शेर शायरी के बारे में मैं सोचता हूँ, क्रिकेट फॉलो करता हूँ। बट आई जनरली हैव अवॉइडेड the trolling and the social media as a principle. थैंक यू सो मच सर। सीपी में टीपी से लेके और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने तक आपका ये सफ़र शानदार रहा, और बीते 1 घंटे के दौरान ऐसा लगा कि जीवन के जितने भी तनाव हैं अगर आपको दूर करने हैं तो इन मंत्रों को सुन लीजिए, आपके जीवन के तनाव दूर हो जाएंगे। कैसे काम कंपोज और सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, जस्टिस चंद्रचूड़ उसकी जीती जागती मिसाल है। थैंक यू सर, एनडीटीवी इंडिया के इस फोरम में आने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर सर जी।